अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल विल बी फाइन। तो जी आज हम करने जा रहे हैं पीएससी 201 की जो क्विज है वो ग्रेडिट है और ये आ रही है आपके लेक्चर्स 33 से लेकर 44 तक। आपको 100% श्योरिटी है कि आप 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स ही लेंगे, लेकिन शर्त ये है कि आपने सारे क्वेश्चंस को ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है और याद करना है। उसके बाद जाके LMS पे आपने क्विज को करना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट जो है वो लेक्चर है 33। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, टू रफली इक्वल कोलेशंस ऑफ एक्टर ऑफन फॉर्म्ड अराउंड डैश स्ट्रॉन्ग एक्टर इन ईच कोलेशन। तो वो है 1, एक स्ट्रॉन्ग एक्टर के बीच। वर्ल्ड इकोनॉमी पर्सपेक्टिव हैज डैश मेजर कंपोनेंट्स 3 डैश several historical and present day ideologies claiming that defense of individual liberty। तो वो है liberalism clusters। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, the word liberal derives from the Latin liber। तो ये है हमारे पास free। liberal का मतलब है free। dash is an economic ideology rather than a border political ideology। तो वो है हमारे पास neoliberalism। from lecture 35। क्वेश्चन नंबर 6 है, ओवर द कोर्स ऑफ द डैश मोस्ट सोशल डेमोक्रेट्स ग्रेजुअली डिस्टेंस्ड देमसेल्व्स फ्रॉम मार्क्सिज्म एंड क्लास स्ट्रगल। तो वो है जी 20th सेंचुरी में। इन द पास्ट डैश वर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज रेनफॉर्म्ड सोशलिस्ट। तो वो है सोशल डेमोक्रेट्स। फ्रॉम लेक्चर 36, द डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन इन द इंटायर डैश ऑफ एन इंटीग्रेटेड जियोग्राफिक एरिया पॉपुलेशन। From 37, question number 9, dash is promoted by governments of rich countries and major international organization dominated by rich countries। तो वो है जी globalization। Globalization is a complex phenomenon which is likely to lead to greater concentrations of dash in some cases power के cases में। From lecture 38, the difference in per capita income between the world poorest and richest countries has more than doubled over the last 25 years। आपने years याद रखेंगे तो कितने साल में हुई थी ये? 25 साल में। World Social Forum was formed in 2001 by a coalition of dash trade unions। तो वो थे Brazilian। Conventional economic wisdom maintains that an average growth rate of about 7%। कितने परसेंट? 7%। From lecture 39, question number 14 है, if multinationals were to provide training within the informal sector, many marginalized workers could enter the formal economy and boost their incomes। तो वो जो थी pro poor foreign investments। अच्छा जी, lecture number 40 है। Question number 15 है, dash depending on the nature and or gravity of a conflict it can involve 2 or more parties। तो वो जो थी number of parties involved थी। number of parties जो है वो डिपेंड करती हैं कि हमारी parties 2 या 2 से ज्यादा involve होंगी कि नहीं। अगला क्वेश्चन है 16, dash a range of issues can trigger conflicts including tertiary ideological or economic interests। तो वो है issues field। Dash denials, rejections, protest and international pressure and actions which can diffuse conflicts actions। Question number 17, dash the losing party withdraws from previously held position, value or interest। तो वो थे जो हमारे पास surrender थे। Question number 18 है, dash statement lingering conflicts which are not ended compel parties to accept the status quo instead। तो वो था जी पैसिव स्टेटमेंट। फ्रॉम लेक्चर नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 19 है, डैश रिस्पॉन्स ट्रांसफॉर्म प्रॉब्लम्स इनटू क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज। तो जी क्रिएटिव रिस्पॉन्स जो है उसका ताल्लुक क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज से ही होगा डेफिनेटली। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 20, स्टेप टू रिजोर्ट डैश डेवलप कम्युनिकेशन टूल्स टू बुलेट रिपोर्ट यूज लिसनिंग टू क्लैरिफाई अंडरस्टैंडिंग। तो वो है जी एम्पैथी। क्वेश्चन नंबर 21 है, डैश द कॉन्फ्लिक्ट डिफाइन द इश्यूज नीडेड टू चार्ट कॉमन नीड्स एंड कंसर्न मैपिंग का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो डिफेंस करता है इश्यूज को। फ्रॉम लेक्चर 42, क्वेश्चन नंबर 22,
Today there are over 6 billion people in the world, and by the year 2020-25 the global population would be at least 8.5 billion. Question number 23 है at the Earth Summit in Rio in dash the international community affirmed that current patterns of economic, तो ये कौन सी सदी थी? 1992 में. लेक्चर नंबर 44 से है जी 23 क्वेश्चन नंबर इट इज वेल नाउन दैट पॉवर्टी इज अ डैश फॉर्म ऑफ इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन. तो पॉवर्टी जो है वो आई थिंक ये प्राइमरी है, इसमें आंसर आपका आ रहा था प्राइमरी, पॉवर्टी नहीं है ये, इसमें आपका आंसर है प्राइमरी, प्राइमरी फॉर्म है जी. ठीक है, उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 24 स्ट्रेटजीज फॉर अल्टरेटिंग स्टेट बिहेवियर डैश पनिशमेंट एंड डिटरेंस सैंक्शंस फॉर पोल्यूशन ऑफ पॉपुलेशन रूल्स. तो आंसर है जी स्टिक्स. ये है जी आपके 24 क्वेश्चंस फ्रॉम लेक्चर 33 से 44 तक. जितने भी इंपॉर्टेंस आपके एमसीक्यूज बन रहे थे वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं, बस आपने इनको अच्छे से ध्यान से याद कर लेना है, देख लेना है और उसी के बाद जाकर आपने LMS पे इसको सबमिट करना है. हो सके तो इसको डाउनलोड करके याद रख लें क्योंकि फाइनल टर्म में ये डेफिनेटली आपके काम आने वाली है. ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज.